Start, na? Okay. A very good afternoon. Today we are meeting after a gap of almost around 2 weeks. आज 2 हफ्ते बाद हम मिल रहे हैं. Our previous briefing was on 10th September 2021 and today is 25th September 2021. तो ये टाइम पीरियड 14 days का गैप है. तो वी हैव कम बैक अगेन. इट्स बिकॉज अभी हमारा जो सिचुएशन है, इट्स ए नेक और ब्रेक सिचुएशन फॉर मेनी एस्पिरेंट्स, स्पेशली वो कैंडिडेट्स लोग के लिए जिसका दिस इज़ द लास्ट अटेम्प्ट फॉर देम. एंड देन वैसा भी कैंडिडेट्स है, दे हैव सो मेनी डिफरेंट सिचुएशन लाइक दिस, डिफरेंट डिफ़िकल्टीज है, फाइनेंशियल से लेके डोमेस्टिक इश्यूज है. तो वैसा बोथ सिचुएशन आई मीन वी आर गोइंग थ्रू. तो दैट्स वाई वी हैड टू कम बैक विद दिस टाइम गैप. दैट्स बिकॉज हम जो ये हम प्लेस कर रहे हैं, इट्स नॉट हम में से किसी का ये इंडिविजुअल इशू नहीं है. दिस इज़ अ पैन अरुणाचल इशू एंड दिस इज़ नॉट जस्ट फॉर नाउ. इनफैक्ट हम सोचते हैं कि अभी हो जाओ, द करेक्शन शुड बी डन नाउ, but this is for the future as well. This kind of situation should not be repeated in future. So that's why we are very strongly emphasizing on the particular ongoing issue. इसलिए, and the other fact is the anomalies which have happened in the APPSC. APPSC as an institution is the premier recruitment institution of the state. ये institution का थ्रू से जो civil servants है, they are recruited and then they are the future of this state. They are the will of the state. That means जो हमारे state का जो vehicle है, उसका will है. So if there are anomalies in this recruitment process, then इसमें बहुत ज़्यादा issues आ जाता है. That's why we are coming up with this issue again. And then this जो अभी जो APPSC का जो history है, if you go back, APPSC had lot of issues since the time of its inception. जब से शुरुआत हुआ है, वहाँ से इतना issue आया हुआ है. And then many past aggrieved candidates, they had, वो लोग का बहुत contribution है इसका evolution में. Initially they went through like जो एक basic वाला एक institution था, and then they adopted new structures, new systems. वैसे करके evolution हुआ है. तो on this basis, so last year and then year before that, in the recent past, APPSC का जो recruitment process को लेके, like there were lots of hues and cries. जो anomalies होता है, and the kind of the dilemmas, the kind of situation which candidates were facing. So हमारा ये एक डिमांड था कि हमारा एक ये एस्पिरेशन था कि APPSC should be adopting the UPSC pattern. जो एक UPSC पैटर्न है उसको, because जो वहाँ में जो प्रॉब्लम चल रहा था, it was all because of the structural issues. तो उसको लेके, and in the year 2019, finally जो हमारा ये ड्रीम था, it was finally realized with the vision and dynamism of our honorable chief minister. Through him this particular pattern was brought. तो ये आने के बाद we were all very optimistic and still we are, and this particular change was welcomed with lot of anticipations, lot of जो एक पॉजिटिविटी होता है, सबका अच्छा रिएक्शन रहा, सबका अच्छा रिस्पॉन्स था. तो when this particular pattern was brought and the exam was conducted, तो the preliminary and the mains stages, they sailed through smoothly. उसमें कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ. And in fact we really appreciate the kind of efficiency they brought into the entire examination process, especially preliminary and the mains stage का.
तो दिस क्रेडिट वी गिव इट टू द कमीशन, वो अच्छा किया है। बट द मेन प्रॉब्लम स्टार्टेड व्हेन द रिजल्ट वाज डिक्लेयर्ड। तो यहाँ में वी केम टू द पॉइंट वेयर जहाँ में हमें रियलाइज़ हुआ कि APPC जो नया UPSC पैटर्न अडोप्ट किया, दे डिड नॉट अडोप्ट द होल थिंग, उसको टोटो में नहीं लिया। आई मीन दी एग्ज़ाम का जो पेपर पैटर्न है, एग्ज़ाम का जो ये टफनेस लेवल, उसका जो एक स्टैंडर्ड है, उसको अडोप्ट किया। बट व्हेन इट कम्स टू मार्किंग स्कीम, जहाँ में कट ऑफ मार्क्स सेट करना था, वो जो है जो पुराना APPSC पैटर्न है उसको ही कंटिन्यू किया। RR रूल जो लेके आया है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 309 आर्टिकल 309 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से लेके आया है, वो ज़्यादा पावरफुल है। और वो OM एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है। तो आर्टिकल 12 में ये बताता है कि OM को पावर दे दिया गया है कट ऑफ सेट करने का, OM को पावर दे दिया गया है। हम लोग ये पढ़ा था जब हम लोग एग्ज़ाम देने से पहले RR रूल निकाल लेते हैं, पढ़ लेते हैं, एडवर्टाइजमेंट निकाल लेते हैं, पढ़ लेते हैं, सिलेबस देख लेते हैं। हम लोग को बताया गया कि OM पावर है, हम लोग को पता है कि OM में 33-45 है, ओके दैट इज़ ओके। लेकिन क्लोज टू भी दिया है आप RR रूल में। क्लोज टू में ये बताता है कि कमीशन शेल डिसाइड कट ऑफ। क्या मतलब है तब? तो इफ़ क्लोज वन इज डिसाइसिव, इफ़ क्लोज वन इज डिसाइसिव, क्लोज वन फाइनल है कि कट ऑफ 33 विल हैव नो चेंजेस एट ऑल, तो RR रूल में क्लोज टू क्यों है? कट ऑफ शेल, द कमीशन शेल डिसाइड कट ऑफ। अगर कमीशन पहले ही कट ऑफ डिसाइड कर लिया है आर्टिकल 1 में, तो आर्टिकल क्यों आप लोग देखा RR रूल में कि इसको तो अमेंड नहीं किया जा सकता है। बोला है कि कट ऑफ शेल डिसाइड बेस्ड ऑन सेवरल फैक्टर्स लाइक टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज, वो बहुत ज़्यादा है, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इन ईच स्टेज, लेवल्स ऑफ डिफिकल्टीज। देखिए लेवल्स ऑफ डिफिकल्टी भी एक क्राइटेरिया बोला है, हम लोग इसका बेस में भी कट ऑफ सेट करेगा। तो ये तो पता है हम लोग को कि कट ऑफ तो आप तो सेट, वो ये OM तो दिया है, मतलब क्या है इसका? मतलब कि देयर कैन बी, यू कैन डू सम चेंज, आप चेंज कर सकता है इसके हिसाब से, वी कैन गो इजीली, हम एग्ज़ाम दे सकता है। और ये RR रूल और ये OM किस लिए लेके आया है? ताकि एक अच्छा रिक्रूटमेंट प्रोसेस लेके आने के लिए। वी आर नॉट मेड फॉर दिस OM एंड RR रूल, RR रूल इज़ मेड फॉर अस। ये हम लोग के लिए बनाया गया है ताकि एक अच्छा रिक्रूटमेंट प्रोसेस हो क्या है। अगर इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट करना था, जैसा कि हम लोग वो ये फेलो पैनलिस्ट लोग ये बात किया है, अगर वो लोग आज का डेट में भी अगर वो लोग को अगर आके एग्ज़ाम देने से सेम पैटर्न से होने से, इफ़ दे वुड हैव, मतलब वो लोग 33 और 45 एग्रीगेट दो चीज़ को लेके नहीं आ सकना था, तो APCS हम लोग को डिस्क्वालीफाई कर देना था। आप लोग पहले क्यों आप लोग ये सब अरेंज नहीं किया? बोले हम लोग को बिल्कुल पता है, तो हम लोग क्यों इसमें हम लोग अपना माथा, वी डोंट हैव द मेंटेलिटी टू प्रोटेस्ट करने का मेंटेलिटी हम लोग बुक के रह के नहीं रखा हुआ है। ड्यूरिंग एग्ज़ाम टाइम जब एग्ज़ाम खराब हो, अभी कोई बोलता है अभी डिफ़िकल्ट है, पता चला आपको, पहले तो आपको डिफ़िकल्ट नहीं लगा। एक आदमी, 2 आदमी, 3 आदमी हम लोग बोल सकते हैं कि डिफ़िकल्ट है, एंटायर आदमी को 1210 आदमी को डिफ़िकल्ट है, हम लोग कैसे पता करेगा? सुबह को एग्ज़ाम है 9 बजे को, 1 बजे को एग्ज़ाम है, 1 घंटा का खाना में, 1 घंटा का समय में हम लोग खाना खाता है थोड़ा सा, उसके बाद 1 to 4 एक अलग एग्ज़ाम है, उसमें क्या हम लोग प्रोटेस्ट करने का सोचेगा? हम लोग प्रोटेस्ट करने का नहीं सोच रहे, हम लोग तो नेक्स्ट GS को देने का सोच रहे हैं। अभी बोल रहे आप लोग इतना समय शुरू करा था, अरे एग्ज़ाम रिजल्ट आया, रिजल्ट इज़ द फाइनल टेस्टमेंट कि इतना डिफिकल्ट था। सेक्रेटरी भी खुद बताया कि इतना डिफिकल्ट था, मतलब डिफिकल्ट हो गया तो आप लोग क्लोज टू को इन्वोक कर सकता था, आर्टिकल 12 क्लोज टू को इन्वोक कर सकता था बेस्ड ऑन वेरियस फैक्टर्स। बोले आप कट ऑफ सेट करेगा, मतलब कि आप कट ऑफ सेट नहीं किया है। आर्टिकल 12 ये कहते हैं क्लोज टू ये बताता है। ये तो बड़ा रूल के बारे में, ओवर बड़ा रूल के बारे में बात कर रहा है। अगर निटी-ग्रिटी इनसाइड में OM का अंदर में भी जाने से भी फिर भी बोला है कि जो 33 लेके आया 45 फिर भी वो कर सकता है। लेकिन हम लोग तो बड़ा चीज़ को बात कर रहे हैं कि RR रूल को आप चेंज जल्दी नहीं कर सकता है, क्योंकि आज ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 309 आर्टिकल उससे ये कहते हैं, इसको फ्रेम किया गया है। ये लीगल एक डॉक्यूमेंट हो गया, ये सुप्रीम कोर्ट भी इसको मानना पड़ेगा। तो हम लोग का कहना बात ये है कि हम लोग वाई विल बी प्रोटेस्ट, हम लोग क्यों प्रोटेस्ट करेगा जबकि आपके पास इतना सारा प्रोविजंस है, OM में भी प्रोविजंस है, एंड ग्रेटर देन OM इज RR रूल। उसका आपका ये 19 में बोला है कि गवर्नर शेल हैव द राइट टू अमेंड और इफेक्ट एनी चेंज बोला एट एनी टाइम एंड एनी चेंज। मतलब क्या है? आर्टिकल 12 को भी आप लोग चेंज कर सकते हैं ना। OM को भी तो OM को कौन पावर दिया है? OM को पावर दिया, ये RR रूल पावर दिया है। तो आप लोग को ये आर्टिकल 19 ये बोलता है एनी चेंज, तो ये चेंज कर सकता है एट एनी टाइम। इज दिस नॉट द राइट टाइम? क्या हम लोग ग्रीव नहीं है?
पर्सनली मेरा ये लास्ट अटेम्प्ट है, और आदमी लोग बोल रहे लास्ट अटेम्प्ट में, तो आदमी लोग अगर हम लोग को बात करने से, लास्ट अटेम्प्ट वाला लोग आप बात करने से बोलेगा कि आप लोग कुछ करने के लिए सोच लीजिए। येस, वी आर विलिंग टू डू एनीथिंग, आई एम विलिंग टू डू एनीथिंग। हम लोग का ट्राइबल, हम लोग लड़का लोग हैं, वी कैन गो टू द जंगल, वी विल नॉट टेक अप टू क्राइम और कुछ अलग चीज़ के लिए नहीं कर लेगा हम लोग। बट वी हैव ए केस हियर, वी आर वेल अवेयर ऑफ आवर राइट्स, वी आर वेल अवेयर ऑफ व्हाट आवर रूल्स इज, वी आर वेल अवेयर ऑफ देयर एम्बिग्यूटीज। वो लोग का क्या गलती हो रहा है हम लोग वेल अवेयर हैं, एंड वी आर वेल अवेयर ऑफ मतलब व्हाट वी कैन आस्क फॉर, हम लोग को क्या चाहिए और वो लोग कैसा वो कर सकता है, हाउ कैन दे एग्जीक्यूट। और यहाँ में बोला है कि आर्टिकल 19 में आप लोग पढ़ने से बोला है कि इन एप्लीकेशन, अगर इसको अप्लाई करने में आर्टिकल 20 में बोलता है कि इफ एनी डिफिकल्टी अराइजेस इन एप्लीकेशन ऑफ दिस रूल्स, क्या डिफिकल्टी नहीं आ रहा है क्या, 1:3 मीट नहीं हो रहा है, 1:1 पोस्ट के लिए 45 आदमी लोग, दो आदमी लोग जा रहे हैं एक पोस्ट के लिए, नियरली 40 आदमी लोग, तो एक पोस्ट के लिए सिर्फ एक आदमी जा रहा है। इज दिस ए कॉम्पिटिशन, इज दिस इवन टू सम एक्सटेंट क्या ये एक हेल्दी कॉम्पिटिशन है? आई डोंट वांट टू मेलिफाई और हम लोग कीचड़ उछालना नहीं चाहता है। लेट द पब्लिक डिसाइड, इज दिस ए कॉम्पिटिशन कि एक पोस्ट के लिए सिर्फ एक ही आदमी जाएगा, एंड 33 एंड 45 इज स्ट्रिंजेंट और एकदम बिल्कुल चेंज नहीं करेगा। आर वी इन ए वेलफेयर स्टेट? हम लोग क्या वेलफेयर स्टेट में नहीं है क्या? But the commission has already said that most of the candidates even qualified for the 33 and 45 marks. वो तो रिजल्ट तो वही बताता है कि क्वालिफाई नहीं किया है, लेकिन क्वालिफाई नहीं होने के बाद रिजल्ट आप डिक्लेयर करने के बाद यू हैव द प्रोविजन टू मीट 1:3 फॉर द हेल्दी कंपटीशन के लिए। आप लोग के पास आर्टिकल 2 है। So you guys are saying the commission should focus on the 1:3 issue. Right, that is the very essence of the entire debate. Issues that I would like to highlight on the question you raised is, कमीशन के पास जब हम लोग गया एक मीटिंग करने के लिए, तो वहाँ जाके ये पता चलता है कि कमीशन को अपना ये जो रूल्स के बारे में दे आर नॉट वेरी थोरो विद देयर ओन रूल्स। तो वन पॉइंट आई विल हाईलाइट वेरी स्पेसिफिकली इज ये 1:3 का जो बात है ना, इस चीज़ को 1:3 को कमीशन का इंटरप्रिटेशन ऐसा है कि दे से 1:3 जो है एक सीलिंग लिमिट है बोलता है। सीलिंग लिमिट मतलब मैक्सिमम लिमिट है बोलता है। नो, दैट इज़ नॉट द केस। 1:3 मिनिमम लिमिट होता है। अब एक कंपटीशन पोस्ट के लिए 3 आदमी compete करता है, दैट इज स्टैंडर्ड थ्रू आउट द वर्ल्ड किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में, वो स्टैंडर्ड नॉर्म है। ऑन टॉप ऑफ दैट, जैसे आपने बोला कि पहले 33-45 चीज़ को मेंशन किया, तो अभी क्यों बोल रहा है ना? ये एडवर्टाइजमेंट में मेंशन है, इसी को लेके कमीशन ओएम इसको पावर देता है। तो ओएम का भी मैंडेट देखिए, ओएम का मैंडेट जो ही है 1:3 स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए। इससे पहले आर्बिट्रेरी रेशियोस आता है बोला, जैसे 1:1, एक पोस्ट को 1.1 आदमी कैसे डिवाइड कर सकता है, वो लॉजिक नहीं बनता है ना। इसी को मैंडेट देने के लिए तो 1:3 लेके आया था। और जो ये क्लोज नंबर 2 जो 33 और 45 का % को बात कर रहा है, जिसका कारण से इसी को एम्फेसिस दिया जा रहा है। तब क्लोज 1 को देखिए पहले, क्लोज 1 इज मोर इम्पोर्टेंट देन क्लोज 2, बिकॉज क्लोज 2 इसमें लिखा हुआ है दिस इज सब्जेक्ट टू मीटिंग राशन 1:3, जो 33-45% क्लोज 2 बोलता है। ये पहले आप 1:3 को मेंशन, इसी को फुलफिल करने के लिए आपको पावर दिया है। No, my question was, आपने कहा था कि कमीशन ने ऑलरेडी एक्सेप्ट किया है that there are some genuine issues. So वो genuine issues क्या था? कौन सा point है? कमीशन ने कौन से genuine issues एक्सेप्ट किया? एस बाय ये फेलो स्पीकर भी बोला है कि एक चीज़ तो ये बोला है कि जो 1:3 का जो अंडरस्टैंडिंग है, आई मीन उसमें जो बेसिक फ्लोस तो आई थिंक वो लोग का इंटरप्रिटेशन में है। वो लोग का बोलना ये था कि जैसे ये बोला 1:3 जो सीलिंग लिमिट है, आई मीन सीलिंग लिमिट मीन्स मैक्सिमम नंबर। मैक्सिमम नंबर देखा जाने से आप एक पोस्ट के लिए 5 आदमी भी ले सकता है, 10 आदमी भी ले सकता है, 1:10 तक भी जा सकता है। लेकिन 1:3 मिनिमम होता है। अगर उससे आप नीचे चला गया तो कंपटीशन का मतलब ही ख़त्म हो जाता है। दैट्स वन पॉइंट। एंड द अदर पॉइंट इज जो 33 एंड 45 को लेके था, व्हेन वी टोल्ड द कमीशन कि देखिए आपका जो क्राइटेरिया में है, यहाँ में 33 एंड 45 आप मेंशन करके रखा हुआ है। एट द सेम टाइम यू हैव ऑल्सो मेंशन कि इट इज़ सब्जेक्टेड टू 1:3। तो दैट मीन्स यू आर क्लियरली सेइंग कि 33%
is actually to meet the criteria of 1:3. अगर suppose 33 और 45 का वजह से if you're not able to reach 1:3, then there is another clause, third clause. That means आप वो marks जो ये आप जो set किया है, जो minimum जो I mean whatever standard you have set, उसको आप it can be brought down ताकि 1:3 ratio is maintained. तो इसी को लेके when we discuss about the UPSC pattern, क्योंकि it seems कि commission was also not very thorough that कि 10% was the cut-off marks in UPSC. Somewhere they were also confused, and we were surprised. Since you have brought the UPSC pattern, अब सब कुछ लेके आया है, we expect you to do some इसमें अच्छा से ground work करके, so that जो एग्ज़ाम लिखेगा अभी जो लिख रहा और प्लस जो फ्यूचर में लिखेगा वो लोग को ये इसको लेके एम्बिग्विटीज नहीं होना है, इसको लेके क्या उस नहीं होना है, कन्फ्यूजन्स नहीं होना है जी। अल्टीमेटली हाँ नहीं, अल्टीमेटली सारा जो OM वगैरह जितना भी कन्फ्लिक्ट है 1:3 को लेके है, तो हम लोग बोल रहे हैं कि 1:3 को आप मेंटेन कीजिए, क्योंकि सारा कन्फ्लिक्ट इसी के कारण से आ रहा है। इसको आप फॉलो नहीं कर रहे, इसलिए सारा चीज़ जो है जो आज ऐसा सिचुएशन क्रिएट हुआ है ये आपका कन्फ्लिक्टिंग क्लोज के कारण से है ना। अगर इस चीज़ को अभी आप एड्रेस नहीं करेगा, अगले बार भी यही प्रॉब्लम आएगा, फिर उसके बाद भी। तो जब प्रॉब्लम्स इधर है अभी और वहाँ सुधरने का मौका मिल रहा है तो उसको करना चाहिए। आपने बोला कि रूल्स तो बहुत सारा इन्होंने मतलब वायलेट किया है नेगलिजेंस का। आर यू गोइंग टू टेक लीगल एक्शन विदाउट लीगली हेल्प करना, मतलब कोई केसेस फाइल कर लीगली हेल्प करने जा रहा है, मतलब लीगल हेल्प के लिए जाएगा क्या? एक दो चीज़ पहले इस चीज़ को आंसर देने से पहले एक दो चीज़ आपको जानना क्लियर कर ही दूँ कि ये जो है अभी भी पहले से जैसे बोल रहे हैं, ये लिस्टेड और नॉन लिस्टेड एस्पायरेंट्स का बात नहीं है ये, या फिर 141 वर्सेस 192 का केस नहीं है ना। तो लीगल का बात देखो, हम लोग तो पिछली बार का लास्ट ब्रीफिंग में भी यही बोला था कि वी माइट गो फॉर डेमोक्रेटिक मूव्स एंड ऑल, ये वी स्टेटेड ना क्लियरली। लेकिन बाद में हम लोग डिसाइड किया कि ये चीज़ हम लोग ये भी नहीं करते हैं, क्योंकि ग्रीवेंसेस इतना बड़ा है, इसको अनदेखा नहीं कर सकता है, ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए इस चीज़ का। लेकिन हम लोग का कमीशन का ट्रैक रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं हमें से कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी होते रहता है। घूम फिर के कुछ केसेस में ऐसा हो जाता है कि मजबूरन एस्पायरेंट्स को कोर्ट का दरवाजे तक जाना पड़ता है। लेकिन अभी ये जो स्टेट सिविल सर्विस का जो इशू है ये इतना बड़ा है, हमको नहीं लगता है कि वहाँ भी जाने की ज़रूरत है। आपको बता रहा है कि आपका गलती है इधर है, अब इधर आपके पास में सोल्यूशन भी इधर ही है, कीजिए। और आज क्या है 25 है, 27 को फिजिकल है, तभी भी आज भी हम लोग उस डायरेक्शन में क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि अभी भी पता है कि 1 महीना का टाइम है, आप इसको अभी भी सुधार सकता है। और रहा बात में घूम फिर के लीगली अगर कभी ऐसे नौबत आ भी गया तो उसमें सब लॉस में है, सबका नुकसान है। फिर कमीशन को मिल चुका है तो आप उनका बात नहीं सुन रहे हैं ना। तो अभी आप लोगों ने बोला कि जस्ट उसका आर्गुमेंट ही डाल रहा है कि वो एक्सेप्ट गलती मानने के लिए तैयार है, आप वही बोलना चाह रहा था ना अभी, मतलब आर्गुमेंट ही डाला है कि नहीं ऐसा नहीं बोला। सुनिए 1 पॉइंट वो जो रेशियो 3 रेशियो वाला ना, उसमें भी आप ये नहीं बोल रहे कि कमीशन गलती मान रहा है कि वो जो मैक्सिमम आई थिंक क्या होता है सीलिंग लिमिट है, तो उसमें तो अपना आर्गुमेंट ही डाल रहा है ना, इसमें कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो लास्ट फाइनली एक आदमी का जब अल्टीमेट फाइनल जाता है तो आप लीगल हेल्प लेने के लिए जाते हैं। तो वही मेरा क्वेश्चन था कि अभी तो मानने के लिए तैयार नहीं है, तो आप लोग क्या लीगल हेल्प लेने जा रहे हैं? नहीं, मानने के लिए तैयार नहीं बोल के एक्सप्लिसिटली कमीशन ने हमें बोला नहीं है। कमीशन तो अपना कुछ फ्लॉस को एक्सेप्ट कर रहे हैं ना, तो हमें बोला गया ये बोला है कि एक रिव्यू मीटिंग रखेंगे, तो रिव्यू मीटिंग का हमें इन राइटिंग हमें इन्फॉर्म करेंगे। दैट वाज 1 वीक एगो। तो आज 10 दिन हो गया उस चीज़ को, 10-12 दिन हो गया। तो कल हम गए थे कमीशन चेयरमैन से फिर से मिलने के लिए, तो मुलाकात नहीं हो पाया। तो अभी कमीशन का स्टैंड जैसे आप बोल रहे हो कि कमीशन मना कर दे, कमीशन ने बिल्कुल मना नहीं किया इस चीज़ को, वो नहीं कर बोला एक रिव्यू मीटिंग रखेंगे, देख के बताएंगे क्या है इशू। तो आप लोगों ने
चाहिए था फिर वैक्यूम किया फिर सेम उसी का मतलब आज आया कि फिर वही आपका डिमांड सेम पॉइंट पे इशू जो इसलिए जैसे बताया इशू पहले से 1:3 पे है। हाँ इशू 1:3 पे है तो कमीशन इस चीज़ को टाइम ले रहा है। मैं भी सोच रहा होगा कि क्या है, लेकिन कमीशन का जो अगर 1 हफ्ता का टाइम दिया है तो 1 हफ्ते में रिस्पॉन्स करना चाहिए। इतना बड़ा इशू है, आप इस चीज़ को डिले करके एग्जामिनेशन प्रोसेस यू कैन नॉट गेट अवे विद दिस। आपका गलती के कारण से हर बार एस्पायरेंट कैन नॉट बी एट द रिसीविंग एंड। तो पहले कभी ये मुद्दा उठ जाता तो आज ये नौबत नहीं आता, लेकिन आज हम लोग इसको उठा रहा है, ये फ्यूचर के लिए भी है। तो ये गलती इधर से सुधार होना चाहिए।